Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Hope you all are fine. Students, the topic which we will discuss today is rule of law, and we will discuss the definition, concept of the rule of law, principles of rule of law and implementation, and we will discuss further its definition and its relation with individual liberty, morality, etc. So students, basically rule of law is a principle which in which all persons, institutions and entities are accountable to law that are publicly promulgated, equally enforced, independently educated. So basically rule of law, the mechanism, process, students, institution, practice or norm that supports the equality of all citizens before the law, secures a non-arbitrary form of government, and more generally prevents the arbitrary use of power. What is arbitrary use of power, or you can say non-arbitrary form of government? What a question came in my mind, students, what is arbitrary use of power? So students, arbitrary use of power, basically arbitrary power is the authority to act in any manner that a person sees fit to do. बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे लॉज जो कि कंसंट्रेंट्स होते हैं और पर्सनस की आर्बिट्री पावर का रेलिवेंट, यानी आर्बिट्री एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो कि इंसान देखता है कि किसी भी काम करने की जो अथॉरिटी रखता हो, कि उसको पता हो कि वो ये काम बेहतर तरीके से कर सकता है, उस काम को करने की अथॉरिटी को रखना विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर द हार्म इट कुड डू टू अदर्स. बेसिकली स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज़ नॉन आर्बिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर का होना, जिस अथॉरिटी का होना जिसको वो प्रॉपर तरीके से काम से अंजाम नहीं दे सकती, वो नॉन आर्बिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. बेसिकली रूल ऑफ लॉ एक मैकेनिज़्म है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की इंस्टीट्यूशंस जो वर्क करते हैं वो लोगों की, सिटीजन्स की इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं लॉ से पहले, एंड वो सिक्योर करते हैं नॉन आर्बिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और इसके साथ साथ मोर जनरली वो आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर को, यानी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जो लॉ है वो क्या होता है, आर्बिट्री यूज़ के मुताबिक प्रॉपर यूज़ होता है. आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ आर्बिट्री form of government. Arbitrary, basically student, arbitrary is defined as something that is determined by judgment or whim and not for any specific reason or rule. An example of an arbitrary decision would be a decision to go to the beach just because you feel like it. Basically student, a person, even though arbitrary comes from a word meaning judge, arbiter, that does not mean judges are always fair. Calling a decision maker arbitrary is usually a negative thing, suggesting the person is making rules based on whim rather than justice. So basically student, arbitrariness is typically of various forms of despotism, absolutism, authoritarianism and totalitarianism. So basically student, arbitrariness एक फॉर्म होती है डिस्पोटिज़म की, एब्सोल्यूटिज़म की, अथॉरिटेरियनिज़म की और टोटलिटेरियनिज़म की. सो बेसिकली despotic governments include even highly institutionalized forms of rule in which the entirety at the apex of the power structure, such as a king, a janta or a party committee, is capable of acting without the constraint of law when it wishes to do so. बेसिकली स्टूडेंट, डिस्पोटिक गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्लूड करती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, फॉर्म्स को, रूल करते हैं अपनी इंटाइटी को लेते हुए पावर स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि एक किंग और एक उनका पार्टी कमेटी और उनकी जैसे एक लीडर होता है, वो अपनी कमेटी के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर अपनी पावर को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा वो कैपेबल होते हैं लॉ को बनाने को जब उन्हें ज़रूरत होती है किसी भी फैसले के ऊपर डिसीजन करने के लिए, किसी भी मैटर के ऊपर डिसीजन देने के लिए. फर्दर स्टूडेंट्स, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ केम have been central to political and legal thought since at least the 4th century BCE, when Aristotle distinguished the rule of law from that of any individual.
In the 18th century, the French political philosopher Montesquieu elaborated a doctrine of the rule of law that contrasted the legitimate authority of monarchs with the caprice of despots. It has since profoundly influenced Western liberal thought. Basically student, I am telling you कि rule of law का जो idea है वो कब आया पॉलिटिकल और लीगल थॉट में, एटलीस्ट 4th सेंचुरी BCE में, जब एरिस्टोटल ने रूल ऑफ लॉ को किसी भी इंडिविजुअल से क्या कर दिया था, डिस्टिंग्विश कर दिया था। इसके साथ साथ 18वीं सदी में मॉन्टेस्क्यू ने डॉक्ट्रिन दी थी रूल ऑफ लॉ की, और उसने कंट्रास्टेड लेजिटिमेट अथॉरिटी दी थी मोनार्क्स की, जिसके थ्रू वो अपने डिसीजंस को एलेबोरेट करते थे। फर्दर स्टूडेंट, the rule of law implies that every person is subject to the law, including people who are lawmakers, law enforcement officials and judges. In this sense, it stands in contrast to tyranny or oligarchy, where the rulers are held above the law. Basically students, rule of law का जो कॉन्सेप्ट है और रूल ऑफ लॉ के जो इम्प्लीकेशंस हैं, सिग्निफिकेंस हैं, फैक्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली मॉन्टेस्क्यू ने एक डॉक्ट्राइन पेश की है, जिसको उसने डॉक्ट्राइन में रूल ऑफ लॉ का नाम दिया है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, रूल ऑफ लॉ को जो डिस्टिंग्विश किया है रूल ऑफ लॉ की सारी फ्रेजेस से, द लेटर फ्रेज इज़ यूज टू डिजिग्नेट सम पर्टिकुलर लीगल रूल लाइक द रूल अगेंस्ट परपिट्यूटीज और द रूल डैट से वी हैव टू फाइल आवर टैक्सेस बाय अ सर्टन डेट. The rule of law comprises a number of principles of a formal and procedural character, addressing the way in which a community is governed. Students, rule of law कंप्राइज करता है किससे, प्रिंसिपल से, वैल्यूज़ से और फॉर्मल प्रोसीजरल करैक्टर से, जिसके तहत हमारी कम्युनिटी के जितने भी रूल्स और जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो गवर्न होते हैं. उसके साथ साथ फॉर्मल प्रिंसिपल जो है कंसर्न करता है जनरलिटी पे, क्लैरिटी पे, पब्लिसिटी पे, स्टेबिलिटी पे एंड प्रॉस्पेक्टिविटी ऑफ द नॉर्म्स दैट गवर्न अ सोसाइटी. द प्रोसीजरल प्रिंसिपल्स कंसर्न द प्रोसेस by which these norms are administered and the institution like courts and an independent judiciary that their administration requires. On the other hand, students, I am giving you an example on some accounts. The rule of law also comprises certain substantive ideals like a presumptions of liberty and respects for private property rights. But these are much more controversial, and indeed, as we shall see, there is a great deal of controversy about what the rule of law requires. Further, students, the rule of law is one ideal in an array of values that dominates liberal political and morality. Students, in general, the rule of law implies that the creation of laws, their enforcement and the relationships among legal rules are themselves legally regulated so that no one, including the most highly placed official, is above the law. इन जनरल व्यू स्टूडेंट्स, रूल ऑफ लॉ क्या करता है, ऐसे लॉज बनाता है जिनकी इन्फोर्समेंट में और जिनके रिलेशनशिप में लीगल रूल से रेलिवेंट कोई भी लीगल अथॉरिटी ऐसी नहीं होती जो कि लॉ से ऊपर हो. यानी जो लॉज होते हैं सब लोगों को, सब ऑफिशियल्स को उन्हीं लॉज को मानना पड़ता है, उन लॉज से ऊपर कोई लॉ नहीं होता. The legal constraint on rulers means that the government is subject to existing laws as much as its citizens are. लीगली अगर हम देखते हैं जो रूलर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को गवर्न कर रहे हैं,
वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, यानी उनको बाउंड होते हैं गवर्नमेंट के जो गवर्नर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉज को मानने के, और इसी तरह उनके जो सिटीजन्स हैं गवर्नमेंट के, वो अपने रूल्स को कम्युनिटी के गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रूल्स को मानती हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट एक closely related notion is the idea of equality before the law, which holds that no legal person shall enjoy privileges that are not extended to all, and that no person shall be immune from legal sanction. इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि कोई भी इंसान इंजॉय करता है अपनी मराद को, अपनी जितनी भी अथॉरिटीज़ को, और वो उनसे एक्सटेंड नहीं कर सकता। किस सूरत में? जो उसके पास प्रिविलेजेस उसके हैं, हर इंसान उन्हीं प्रिविलेजेस को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को यूज़ करता है, जबकि ना कि वो उनको एक्सटेंड कर देता है, यानी सैंक्शन से ऊपर। In addition, the application and adjudication of legal rules by various governing officials are too impartial and consistent across equivalent cases, made blindly without taking into consideration the class status or relative power among disputants. Students, इसके साथ साथ जो लीगल रूल्स हैं उनकी इम्प्लीकेशन के अंदर गवर्निंग ऑफिशल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इक्वली सबको हैंडल करते हैं। इसके साथ साथ वो किसी भी क्लास स्टेटस और उनके मॉरलिटी को देखने के अलावा उसके ब्लाइंडली वो सबके ऊपर इक्वल डिसीजंस लेते हैं, जो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जो रूलर्स होते हैं। इन ऑर्डर फॉर दोज आइडियाज़ टू हैव एनी रियल परचेज, moreover there should be in place some legal apparatus for compelling official to submit to law. Further, students, not only does the rule of law entail such basic requirements about how the law should be enacted in society, it also implies certain qualities about the characteristic and content of the laws themselves. Further, students, ना सिर्फ रूल ऑफ लॉ सिर्फ इन चीज़ों को देखते हुए कि कैसे लॉ सोसाइटी के अंदर यूज़ होगा, बल्कि साथ साथ वो लॉ की क्वालिटीज़ के ऊपर, करैक्टरिस्टिक के ऊपर, यानी उसकी खसूसियात और उसकी क्वालिटीज़ के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है, जो कि लॉ खुद ही अपने तरीके से उसको हैंडल करता है। ख़ास तौर पे लॉ को, यानी जितने भी कानून हैं, क्लियर और ओपन होना चाहिए, जर्नल फॉर्म में होना चाहिए, उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन जो है यूनिवर्सल होनी चाहिए और नाउनेबल टू ऑल, और हर एक किसी को उसको जानना चाहिए। मोर ओवर लीगल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सच दैट पीपल आर एबल टू बी गाइडेड बाय देम। उसके साथ साथ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होनी चाहिए, लोगों को एबल होने चाहिए ताकि वो लोग उसको इक्वली और इजीली उनको गाइड कर सकें। दे मस्ट नॉट प्लेस अनड्यू कॉग्निटिव और बिहेवियरल डिमांड्स ऑन पीपल टू फॉलो। इसके साथ साथ लोगों के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होना चाहिए उन लॉज को फॉलो करने के लिए। Thus, the law should be relatively stable and comprise determinate requirements that people can consult before acting, and legal obligations should not be retroactively established. Furthermore, the law should remain internally consistent and failing that should provide for legal ways to resolve contradiction that can be expected to arise. Students, law को internally क्या होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो इजीली अपने मैटर्स को लीगली तरीके से रिजॉल्व कर सकें और अपनी जितनी भी डिमांड्स हैं उस पर एक्सपेक्ट कर सकें कि लॉ के तहत उनको उन डिमांड्स को प्रॉपर तरीके से पूरा किया जा सकता है। डिस्पाइट दोज बेसिक फीचर्स, हाउएवर, देयर हैज़ नेवर बीन अ जनरली एक्सपेक्टेड और इवन सिस्टमेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, but not for lack of attempts by jurists and political philosophers. इसके साथ साथ स्टूडेंट इन फीचर्स के अलावा जनरली लॉ को इतना ज़्यादा सिस्टमेटिकली फॉर्मुलेशन रूल ऑफ लॉ की इतनी एक्सेप्टेड होनी चाहिए कि उसकी जितनी भी अटैम्प्ट्स और जूरिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर इजीली, ना सिर्फ जूरिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसफर उसके अटैम्प्ट कर सकें बल्कि नॉर्मल सिटीजन्स भी।
The idea that the law should contribute to beneficial ways of channeling and constraining the exercise of public power can be interpreted in different ways. Such differences are especially apparent over time and across different polities, institutions and legal culture. Students, for further understanding of the concept of rule of law, I am telling you the concept of rule of law, the relationship of rule of law with institutions and legal culture, a relationship of rule of law. For such reasons, the rule of law is best seen not as a blueprint for institutional design, but as a value or cluster of values that might inform such a design and that can therefore be pursued in a variety of ways. Students, रूल ऑफ लॉ की बेस्ट इम्प्लीकेशन उसकी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन से रेलिवेंट इतनी वैल्यूड और क्लस्टर और क्लियर होनी चाहिए कि जो उसका डिज़ाइन है रूल ऑफ लॉ का वो किस तरह बेस करना चाहिए, यानी डिफरेंट वैरायटी ऑफ वेज के अंदर, जिसके साथ साथ उसकी जो सिंपल और जनरलाइजेबल इंस्टीट्यूशनल इंसाइट फॉलो फ्रॉम द आइडिया दैट दोज हु जज द लीगैलिटी ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर शुड नॉट बी द सेम एज दोज हु एक्सरसाइज इट, यानी कि उसको जो डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशनल डिफरेंट आइडियाज़ हैं, यानी उसको जज करने के लिए उसकी लीगैलिटी को वो डिफरेंट बेस पे इतने इजी होने चाहिए कि उसको एक्सरसाइज करने के लिए यानी इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकें इंस्टीट्यूशन. For instance, a typical rule of law state will institutionalize some means of shielding legal officials from interference, political or otherwise, that threatens their independence. यानी कि जो टिपिकली रूल ऑफ लॉ यानी स्टेट का जो रूल ऑफ लॉ है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करता है डिफरेंट किस्म के लीगल ऑफिशियल यानी इंटरफेरेंस से रेलिवेंट लीगल ऑफिशियल्स को यानी पॉलिटिकल्स और दूसरे मैटर्स को जो कि थ्रेटन्स करते हैं रूल ऑफ लॉ की इंडिपेंडेंस से रेलिवेंट. According, the institutional separation of the judiciary from other branches of government is commonly thought to be an important feature of rule of law. इसके साथ साथ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन जो है, इंस्टीट्यूशंस की सेपरेशन में जुडिशरी का दूसरे डिपार्टमेंट से सेपरेट हो जाना, ख़ुद मुख्तियार हो जाना और अपने फ़ैसले करने में इंडिपेंडेंट होना, बेस्ट एग्जांपल है रूल ऑफ लॉ के स्टेटस से रेलिवेंट. Other measures to ensure fair access to legal institution may also be important for rule of law regimes. In addition, a binding written constitution is widely believed to aid the rule of law. यानी a binding written constitution यानी एक written constitution जो है rule of law के एक best example है और has been adopted by most states of the world. Rule of law की examples को देखते हुए written constitution, binding written constitution is the best example for rule of law. While certain institutional traditions and convention as well as written laws may be important to ensure that judicial decisions are grounded within plausible interpretation of existing law, no single institutional character of a state should be seen as necessary or sufficient to the rule of ideal law. Basically student, institutions की ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस को देखते हुए जो रिटन लॉ होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं. किस सूरत में जो जजेस होते हैं अपने फ़ैसले करने के लिए जो रिटन रूल ऑफ लॉ होते हैं उनको ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए, कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए जो जुडिशल डिसीजंस होते हैं वो इजी होते हैं किसके लिए, फ़ैसले करने के लिए. फ्यूचर में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो माजी में की ट्रेडिशंस और कन्वेंशन और एज वेल एज रिटन लॉज होते हैं उन फैसलों को देखते हुए जुडिशल डिसीजंस इजी हो जाते हैं. इसके साथ साथ नो सिंगल इंस्टीट्यूशनल करैक्टर ऑफ अ स्टेट, इसके साथ साथ कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट का हम उसको अहम नहीं देख सकते किस तौर पे रूल ऑफ लॉ की आइडियल तौर. उसके साथ साथ द रूल ऑफ लॉ इज टाइड नाइदर टू एनी वन नेशनल एक्सपीरियंस नॉट टू एनी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन इन पार्टिकुलर.
although it may be better served in certain countries and by some institution। इसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ को हम ना सिर्फ किसी एक मुल्क में बल्कि इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं प्रैक्टिसाइज करते हुए, यानी बहुत से इंस्टीट्यूशन और बहुत सी कौमें रूल ऑफ लॉ को यूज़ करती हैं जो कि रिटन फॉर्म में भी होते हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज़ और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ करते हैं। मोर ओवर द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दैट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ इन वन पॉलिटी माइट नॉट बी ईजीली डुप्लीकेटेड इन और transplanted to another। Different polities embody their own judgment about how to implement specific rule of law ideals given their particular legal and cultural traditions। Different polities यानी different polities मतलब रियासत, डिफरेंट रियासतें अपनी जजमेंट को, यानी उन्होंने किस तरह रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट किया है अपनी लीगल कल्चरल ट्रेडिशंस के अंदर, उन्हें भी यानी वो जजमेंट करते हैं कि हमने अपनी कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और नॉर्म्स में किस तरह अपने स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ को यूज़ करना है, जो कि इन्फ्लुएंस करता है उनके अपने इंस्टीट्यूशंस के करैक्टर के रेलेवेंट। उसके साथ साथ इनिशियली सोशियोलॉजिकल कंडीशन फॉर द रूल ऑफ लॉ इज़ शेयर्ड अक्रॉस द कल्चर फॉर द रूल ऑफ लॉ to be more than an empty principle। Most people in a society, यानी students are sociology concept of the rule of law। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि रूल ऑफ लॉ को अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली देखते हैं, उसके साथ साथ वो अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली एडमिनिस्टर करते हैं लॉ को, इज़ टू एडमिनिस्टर द लॉ अपने प्रोफेशन के रिलेवेंट, और उसके साथ साथ वो बिलीव करते हैं कि ना सिर्फ इंडिविजुअल और बल्कि ग्रुप जो हैं शुड बी अबव द लॉ, मस्ट बिलीव दैट नो इंडिविजुअल और ग्रुप शुड बी अबव द लॉ। यानी वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अफरादी तौर पर या ग्रुप की सूरत में लॉ से ऊपर नहीं है, ऑल एंड ऑल दे हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। Further students, I will discuss some challenges to the rule of law. Before this, we discussed the relationship of rule of law with institutions and culture, and further we are discussing the challenges to the rule of law. Anyone who holds that what matters most in politics is having the right people in power and not how power should be constrained will be unconvinced for the value of the rule of law। मीन्स स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि पॉलिटिकली मैटर्स को हैंडल करते हैं, उनके पास पावर में राइट होता है कि वो अपनी पावर को किस तरीके से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली यूज़ करें, ना सिर्फ वो किसी भी इंस्टीट्यूशंस यानी पब्लिक पावर के इंस्टीट्यूशंस को वो किसी आर मेरली इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रूलिंग क्लास दैट नीड टू बी डिसमेंटल्ड rather than merely constrained। For the majority of modern democratic societies, however, the rule of law's requirement that both rulers and the ruled be accountable to the rule of law is of unquestionable value। Further students, बहुत सारी जमहूरियत वाली सोसाइटीज़ के अंदर रूल ऑफ लॉ को रिक्वायर करते हैं रूलर्स भी और रूल भी, यानी रूल बनाने वाले भी और रूल को मानने वाले भी। To be ensured in the modern world, it is the liberal tradition that values the rule of law most highly। Liberals who are concerned with ways of protecting and realizing liberty in some form and averting threats to it view the rule of law as an overarching source of security। Nonetheless, there is substantial disagreement even among liberals over what exactly counts as a faithful application of the term, and even when that is pinned down, how it is to be accomplished। Further students, in itself the notion of rule of law is not a faithful description of any state of affairs, but a complex ideal that it is even more complex to realize। Further students, rule of law किसी भी स्टेट के अफेयर्स को लेते हुए
एक कॉम्प्लेक्स मैटर भी है, यानी उसके मैटर्स को लेते हुए कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स मैटर को रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली किस तरह हल करना है। इसके साथ साथ एक रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न टू बी स्केप्टिकल अबाउट वेदर सोसाइटीज़ नेसेसरली बेनिफिट फ्रॉम ऑल द माइट बी इन्वोक्ड अंडर द टर्म। इसके साथ जो एक कॉन्सेप्ट है, एक टैक्टिकल, एक हरवा है इसको यूज़ करने के लिए, द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी फॉर इंस्टेंस इज़ क्लियरली अ प्रॉब्लम if the independence is misused to foster the sectoral privileges of judicial personnel or to allow unchallenged interpretation of the law। यानी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कोई भी इंडिपेंडेंस को मिसयूज़ करते हुए कोई भी ऐसा फैसला ना हो जाए जिसमें जुडिशल पर्सोनल जो है वो क्या कर देता है, अनचैलेंज कर देता है लॉ के अंदर किसी भी किस्म की इंटरप्रिटेशन को, यानी किसी भी किस्म की मुदाखलत को। हैविंग एम्फसाइज ऑन द फॉर्मल एस्पेक्ट्स of the rule of law, for example on procedural justice may distract from the content and consequences of those laws. Criticize of a strictly formal conception of the rule of law argue that too much attention to legal process generates significant vices of its own in the form of exaggerate legalism and neglect of the political or real world dimensions of legal concepts। यानी प्रोसीजरल जस्टिस को देखते हुए रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली ये आर्ग्यू किया जाता है कि किसी भी लीगल प्रोसेस के ऊपर टू मच अटेंशन देते हुए इंसान उसकी एग्जेजरेट कर जाता है, किससे उसकी लीगल बिहेवियर को लेते हुए, और वो निगलेक्ट हो जाता है क्या पॉलिटिकल और रियल जो डायमेंशन होती है लीगल कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो मेन डिसीजन लीगल कॉन्फ्लिक्ट का होता है उससे रेलिवेंट एक निगलेक्ट प्रोसेस सामने आता है जिसके तहत जो जस्टिस होती है यानी जो इंसाफ होता है वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होता। उसके साथ साथ एक्सेसिव वेनिरेशन ऑफ द लॉ एंड लीगल प्रोसेस, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स excessive veneration of the law and legal procedures may be too costly if it inhibits independent social assessment of the merits of a given policy proposal। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक चैलेंज जो कि रूल ऑफ लॉ में आता है वो ये है, सोसाइटी के किसी भी मैटर को असेस करने के लिए इंडिपेंडेंट सोशल असेसमेंट को देखते हुए पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एक ऑफिशियल मैंडेट ब्लाइंडनेस गिव्स लेजिटिमेसी टू द एक्शन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द लॉ इवन व्हेन मोस्ट पीपल वुड अपोज सच एक्ट्स। एक ब्लाइंडनेस के तहत किसी भी लीगल मैटर के ऊपर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली फैसले जो कर दिए जाते हैं वो समटाइम्स क्या होता है, एक चैलेंज होता है रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली कि आइदर दिस इज़ अ ट्रू डिसीजन और इट्स रॉन्ग। Further, some writers have charged moreover that the increased domain of judge and lawyers, indeed their encroachment into areas previously left to politicians and the electorate entails the loss of much that is politically and democratically valuable। यानी एक और चैलेंज जो हम सामने आता है वो क्या, जजेस और लॉयर्स की तादाद का बढ़ जाना जिसके तहत वो क्या कर देते हैं, इंक्रोचमेंट होती है डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जिससे जो सियासतदान और जो इलेक्टोरेट होते हैं इनको पीछे छोड़ते हुए क्या होता है, पोलिटिकली और डेमोक्रेटिकली जो चीज़ें होती हैं उनका लॉस होता है। इन शॉर्ट, टू मच एम्फसाइसिस ऑन प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरीनेस can lead to subverting the doing of justice according to what might otherwise find support in the rule of law। In short students, प्रोसीजर्स के ऊपर रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंगली डिसीजन करने के ऊपर एम्फसाइज करते हुए जो आर्बिट्रीनेस होती है यानी जो एक पावर होती है टू अथॉरिटी टू डू सो वट दे वांट टू डू सो, वो क्या कर जाती है, जस्टिस के अकॉर्डिंगली लीड कर जाती है सबवर्टिंग को इंसाफ के तहत, जबकि सपोर्ट को ढूंढते हुए रूल ऑफ लॉ की सपोर्ट को ढूंढते हुए उसके साथ साथ लीगल स्ट्रक्चर क्या हो जाता है,
आर्बिट्रस के अंदर मोर बहुत ज़्यादा लेजिटिमेट आ जाता है। आर्बिट्रस को देखते हुए लीगल स्ट्रक्चर में एक बहुत ज़्यादा वो जाता लेजिटिमेट हो जाता है, और उसी के साथ साथ वो लोग जो डिफेंड करते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ द रूल ऑफ लॉ को, वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं सब्सटेंटिव अंडरस्टैंडिंग्स of the ideal on the grounds that morally ambitious aspiration about the rule of law threaten to pursue the concept of its specificity and usefulness. फर्दर स्टूडेंट्स वो आर्ग्यू करते हैं कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ओपन कॉन्सेप्ट के ऊपर कि टू अ होल होस्ट ऑफ एक्स्ट्रा लीगल consideration about substantive justice and wider societal goals in the confluent ideas about the rule of law with notions about the rule of good law, such that any distinction between the two is reduced to nothing. As a consequence, no discussion of the rule of law can be complete without some philosophical reflection on law, including on its purpose and meaning. Further student, in last problem, the basic challenge of a rule of law make it impossible. Rule of law makes it impossible for one person to have the unrestrained exercise of power over a society or nation. It applies and puts a limit or check to the behavior of everyone, including government officials. Under the rule of law, everyone is subject to the law and no one is above the law. So students, प्रॉब्लम को देखते हुए, रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम को देखते हुए, रूल ऑफ लॉ क्या कर देता है, इम्पॉसिबल करता है किसी भी एक इंसान के लिए कि वो क्या करे, ऐसी अपनी पावर को अनलीगल और इलीगली पावर को यूज़ करे सोसाइटी पे और नेशन के ऊपर। इसके साथ साथ वो क्या कर देता है, रूल ऑफ लॉ एक इंसान के ऊपर, एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर लिमिट और चेक एंड बैलेंस उसके बिहेवियर के ऊपर, जो कि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूड होता है उसके बिहेवियर के अंदर, वो बाउंड हो जाता है अंडर रूल ऑफ लॉ के साथ। Further students, principles which exist in rule of law, the government as well as private actors are accountable under the law. The law are clear, publicized and stable, are applied evenly and protect fundamental rights, including the security of person and contract property and human rights. Students, rule of law specialize the act of refusing to accept someone as a member of a jury. A challenge to a member of the jury should be made before the trial begins. Students, what is a question, another question came in my mind is what is the importance of the rule of law? Students, the government and its officials and agents as well as individuals and private entities are accountable under the law. The law are clear, publicized, stable and just, are applied evenly and protect fundamental rights, including the security of persons and property and certain core human rights. Example of the rule of law is 16th century में जॉन लॉक ने इसकी एग्जाम्पल दी थी। बट वन एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ डैट रूल ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, इक्वली हर इंसान सिटीज़न के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, जिसके अंदर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी होते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जजेस, और उसके साथ साथ लॉ जो है शुड बी मेड पब्लिक सो एवरी वन अंडरस्टैंड द लॉज एंड अंडरस्टैंड दैम।